नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 5 से 7। पितामहा मे समरे मरंचरैर् देवव्रताद्यातीर्थैस्तिमङ्गलै दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लव। द्रौणी अस्त्रविप्लुस्तम् इदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां। जुगोपकुक्षं गत आतचक्रो मातुश्चमेय शरणं गताया। वीर्यानि तस्याखिलदेहभाजम् अन्तर्बहिर्पुरुषकालरूपै प्रयच्छतो मृत्युम् उतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्य विद्वान्। Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charana Arvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Taking the boat of Krishna's lotus feet, my grandfather Arjuna and others crossed the ocean of the battlefield of Kurukshetra, in which such commanders as Bhishmadev resembled great fish that could very easily have swallowed them. By the mercy of Lord Krishna, my grandfathers crossed this ocean, which was very difficult to cross, as easily as one steps over the hoof print of a calf. Because my mother surrendered unto Lord Krishna's lotus feet, the Lord, Sudarshan Chakra in hand, entered her womb and saved my body, the body of the last remaining descendants of the Kurus and the Pandavas, which was almost destroyed by the fiery weapon of Aswathama. Lord Sri Krishna, appearing within and outside of all materially embodied living beings by his own potency in the form of eternal time, that is, as Paramatma and as Virata Rupa, gave liberation to everybody, either as cruel death or as life. Kindly enlighten me by describing his transcendental characteristics. Purport. As stated in Srimad Bhagavatam, संसारिता ये पाद पल्लवप्लवं महत्पदं पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 यत् पदं न तेषाम्. For one who has accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Murari, or the enemy of the Mura demon, the ocean of the material world is like the water contained in a calf's hoof print. His goal is Parampadam or Vaikuntha, the place where there are no material miseries, not the place where there is danger at every step. One who seeks shelter at the lotus feet of Lord Krishna is immediately protected by the Lord, as the Lord promises in Bhagavad Gita, Aham tvam sarvapapebhyo mokshayishyami ma sucha. I shall deliver you from all sinful reactions, do not fear. By taking shelter of Lord Krishna, one comes under the safest protection. Thus, when the Pandavas took shelter at the lotus feet of Krishna, all of them were on the safe side of the battlefield of Kurukshetra. Parikshit Maharaj therefore felt obliged to think of Krishna in the last days of his life,
This is the ideal result of Krishna consciousness. Ante Narayana Smriti. If at the time of death one can remember Krishna, one's life is successful. Parikshit Maharaj, therefore, because of his many obligations to Krishna, intelligently decided to think of Krishna constantly during the last days of his life. Krishna had saved the Pandavas, Maharaj Parikshit's grandfathers, on the battlefield of Kurukshetra, and Krishna had saved Maharaj Parikshit himself when he was attacked by the Brahmastra of Ashwatthama. Krishna acted as the friend and worshipable deity of the Pandavas family. Moreover, apart from Lord Krishna's personal contact with the Kauravas, Krishna is the supersoul of all living entities, and he gives everyone liberation. Even if one is not a pure devotee, Kamsa, for example, was not at all a devotee, yet Krishna, after killing him, gave him salvation. Krishna consciousness is beneficial to everyone, whether one is pure devotee or a non-devotee. This is the glory of Krishna consciousness. Considering this, who will not take shelter at the lotus feet of Krishna? Krishna is described in this verse as Maya Manusya because he descends exactly like a human being. He is not obliged to come here like karmis or ordinary living entities. Rather, he appears by his own internal energy, Sambhavami Atma Maya, just to show favor to the fallen conditioned souls. Krishna is always situated in his original position as Sachidananda Vigraha, and anyone who renders service to him is also situated in his original spiritual identity, Swarupena Vivastitah. This is the highest perfection of human life. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के इस सुंदर श्लोक को पढ़ रहे हैं जहाँ पर कि महाराज परीक्षित यह सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं कि मैं क्यों कृष्ण के विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो उसी क्रम में परीक्षित महाराज इस श्लोक को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पितामहा में समरय मरंजरैर देवव्रताद्याद अतिरथैस्तिमंगलैः दुरत्ययाम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरम वत्स पदम स्मयत प्लवः। तो परीक्षित महाराज स्मरण कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनके जो पितामह गण थे, जो 5 पांडव थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। तो यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कौरव सैन्य सागरम, और कह रहे हैं कि पितामहा में समरय मरंजरे देवव्रताद्याद अतिरथस्तिमंगलैः। जो कौरव सेना में जो सेना नायक थे भीष्मदेव, उन्हें उनकी तुलना कर रहे हैं तिमंगलैः। तिमंगला एक प्राणी है, मछली है, उससे महाराज परीक्षित उनकी तुलना कर रहे हैं।
तो वास्तव में भीष्मदेव ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिनको परास्त करना कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में किसी के लिए संभव नहीं था। स्वयं अर्जुन के लिए भी भीष्मदेव को परास्त करना अर्जुन के लिए संभव नहीं था। और यह उदाहरण दिया गया है, तिमंगला जो मछली है, तिमंगला मछली जो है वो समुद्र के किसी भी मछली को, बड़े से बड़े मछली को निगल जाती है। उसमें इतनी शक्ति होती है, उसका आकार इतना बड़ा होता है कि वो किसी भी प्राणी को सागर में वो निगल लेती है। तो यहाँ कौरव सेना जो है उसे सागर के समान बता रहे हैं, और उस सागर में भीष्मदेव, द्रोणाचार्य इस प्रकार के समान जो योद्धा हैं, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, इनको पार कर पाना अर्जुन के लिए और पांडवों के लिए वो अत्यंत कठिन था। परंतु महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया था, तो वो आसानी से उस कौरव सैन्य सागरों को पार कर पाए। और उदाहरण दे रहे हैं, दुरत्ययाम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरम वत्स पदम स्मयत प्लव। तो कृत्वा स्म वत्स पदम स्मयत प्लवाह, जैसे वत्स पदम का अर्थ है जो गाय का बछड़ा होता है वत्स, और उसका पदम, उसके जो खूड़ होते हैं, तो बछड़ा के खूड़ जब चलता है तो उसके खूड़ से भूमि पर निशान पड़ जाते हैं। और जो बछड़े के खूड़ के में कितना बड़ा निशान पड़ेगा, और उसमें जो यदि पानी, इसमें यदि कोई पानी जमा हुआ है तो उसको पार कर पाना कितना सरल है। तो भगवान ने उस कौरव सैन्य सागर को इस प्रकार से छोटा कर दिया, इस प्रकार से सुलभ बना दिया कि जैसे बछड़े के खूंड के पानी को पार करना। तो यह उपमा बहुत ही सार्थक उपमा दी गई है, ऐसी उपमा दी गई है जो हम अपने जीवन में जिसको कि समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार अर्जुन तथा जो पांडव हैं, 5 पांडव, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य के समान जो सेना नायक हैं, और कौरव के जो सैन्य सागर है उसको उन्होंने पार किया, और इस प्रकार पार किया जिस प्रकार की कोई व्यक्ति जो है आसानी से बछड़े के खूंड के निशान में जमा हुआ पानी को पार कर पाता है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य है कि भगवान का शरण ग्रहण करने से जो असंभव चीजें हैं वह भी संभव हो जाती है, या जो अत्यंत कठिन चीज है, जो दुरत्या है, यहाँ शब्द दिया गया दुरत्याम कौरव सैन्य सागरम। दुरत्या जो अत्यंत कठिन है, जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। तो जो ये जो भौतिक प्रकृति है, जो भगवान की दैवी प्रकृति है, जो दैवी धाम है, इसको, संसार को देवी धाम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुर्गा जो है उसकी अधिष्ठात्री है। और इस ये जो देवी धाम है, जहाँ की जन्म मृत्यु का सागर है, तो इसे पार कर पाना एक जीव के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं दुरत्या, यह अत्यंत कठिन है, यह किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है। परंतु मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते, भगवान के शरण कमलों का जो शरण ग्रहण करता है उसके लिए, उस जीव के लिए इस जन्म मृत्यु के सागर को पार कर पाना यह बहुत ही सरल हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मायमेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से माया, इस दैवी माया को जो जीव है, बद्ध जीव है, वो आसानी से पार कर पाता है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद 10वें स्कंध के 14वें चैप्टर से एक श्रीमद् भागवतम के श्लोक को वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में, और बता रहे हैं संसारिता ये पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम
पदम पदम यद विपदम न तेषाम। तो यहाँ भी उसी का वर्णन किया गया है कि यह संसार जो है, संसारिता ये पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, यह संसार जो है यह भी जो है यह जन्म मृत्यु का सागर है। भवाम बुधिर वत्स परम पदम पदम, और भव भव अम्बुधि, अम्बुधि का अर्थ है सागर, और भव जो है ये भव सागर, तो ये भव सागर है जहाँ जन्म और मृत्यु जो है जीव को प्राप्त होता है। और इस जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर पाना जो है वो अत्यंत कठिन है। और पदम पदम यद विपदम न तेषाम, और इस संसार जो है जहाँ पर कि पग पग पर विपत्तियां हैं। ऐसा नहीं कि संसार जो है सिर्फ जन्म मृत्यु का ही सागर है, तो ठीक है जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सुख भोगेंगे, परंतु सिर्फ जन्म और मृत्यु का ही सागर नहीं है, परंतु यहाँ पर पग पग पर विपत्तियां हैं। पदम पदम यद विपदम न तेषाम, पग पग पर विपत्तियां हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जीव इस संसार में जीवन जीता है वह भी विपत्तियों के मध्य में वह जीता है। और बद्ध जीव का, विपत्तियां बद्ध जीव का साथ कभी नहीं छोड़ती। इस संसार में जो कष्ट है, जो विपत्तियां हैं, वह जीव को उसकी परछाई के समान पीछे करते रहती है, क्योंकि संसार में कर्म का चक्र चलता रहता है। जो जीव कर्म करता है उसके फल को भोगता है, और इस प्रकार उस फल से प्रेरित होकर, फल से उसके लाभ से प्रेरित होकर वह निरंतर कर्म को क्रिया करता है और उसके प्रतिफल को प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र जो है वह निरंतर चलता रहता है। और यह जन्म मृत्यु का जो चक्र है यह विपत्तियों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अपने प्रयास से, अपने क्षमता से, अपनी शक्ति से वह विपत्तियों को सुलभ बना लेगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, कोई भी जीव इस संसार में जब रह रहा है तो वो विपत्तियों से मुक्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ भगवान ने कौरवों को उस प्रकार, अर्जुन और पांडवों को उस प्रकार से कौरव सैन्य सागरों को पार करा दिया जिस प्रकार की व्यक्ति कोई बछड़े के खूंड के निशान में जल को वो पार करता है, सरल बना दिया। तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से ही जीव का कल्याण संभव है। और जीव जो है वह इस भव सागर को, भव अम्बुधि जो है, भवाम्बुधि, उसको वो पार कर सकता है। यह अन्यथा संभव नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे कि वो अन्यथा भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए बिना इस संसार के भव सागर को पार कर जाए, तो वह बद्ध जीव के लिए संभव कदापि नहीं है। बहुत सारे जो ज्ञानी हैं, जो मायावादी हैं, वो ध्यान करके, विवेचना करके, शास्त्रों का विवेचना करके उस भव सागर को पार करने का यत्न करते हैं, परंतु वो वापस इस संसार में आ जाते हैं। तो यह संसार जो, इसलिए भगवान कहते हैं कि नाहम वैदैर न तपसा न ज्ञाने न चयुज्यया शक्य एव विधो दृष्टुम दृष्टवान सीमाम था भक्त्या तुरन्या शक्य अहम यो विधोर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो एकमात्र भक्ति द्वारा ही जीव जो है वह कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। और कृष्ण को प्राप्त करना का अर्थ है कि इस जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर जाना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जैसे ही भगवान के चरण कमलों के शरणागत होता है तो वह जो है वह सुरक्षित हो जाता है, उसकी सुरक्षा निश्चित हो जाती है। जिस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं कि आप मेरे शरण में आओ, मैं आपको, आपकी रक्षा करूंगा, आपको सुरक्षा दूंगा। तो यहाँ अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है, वह, उसका जीवन जो है वह भगवान के सुरक्षा से वो सुरक्षित हो जाता है।
और उसे जन्म और मृत्यु का भय नहीं होता है। इस संसार में जो जीव हैं उनको मृत्यु का सर्वोच्च भय होता है। हम देखते हैं लोग जो हैं कि नाना प्रकार के व्यवस्था करते हैं मृत्यु के भय से स्वयं को बचाने के लिए। यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर रोग लग जाए और उसे पता चले कि मृत्यु आने वाली है तो वो भयभीत हो जाता है। और एक भक्त जो है वह कभी भी भयभीत नहीं होता, किसी भी अवस्था में वो भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वह भगवान के सुरक्षा में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है और वह ये जानता है कि जब मैंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया है तो कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासो, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे और मेरे जीवन का गंतव्य कोई भी होगा, कुछ भी होगा, किसी प्रकार से होगा, मुझे भय नहीं है। मैं प्रत्येक दशा में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना चाहता हूं और भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहता हूं। तो इस रिजॉल्व के साथ, इस निष्ठा के साथ जो भगवान का भक्त है वो हमेशा निर्भय रहता है। तो भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे, जो भगवान के चरण कमल हैं वो अभयता को प्रदान करने वाले हैं। जो भी जीव भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय हो जाता है। इसलिए भक्त जो है, भक्त में एक गुण होता है कि वो माया जो है वह संसार के जो कष्ट हैं, संसार का जो दुख है, संताप है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे वो भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए होता है। एक उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार बिल्ली है, तो बिल्ली जब अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है और यहाँ से वहाँ लेकर जाती है, तो जो बिल्ली का बच्चा है वो कभी भी भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं अपने माँ के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिया जा रहा हूँ। तो इस प्रकार बिल्ली जो है, बिल्ली का जो बच्चा है वो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है। और वही बिल्ली का जो मुख है, जब किसी चूहे को पकड़ता है तो चूहा अत्यंत भयभीत होता है और किसी प्रकार से वो वहां से भागने का प्रयत्न करता है, वो छटपटाता है, भागने का प्रयत्न करता है, परंतु बिल्ली के मुख से जो चूहा है वो बच नहीं सकता है। तो यह अंतर है कि बिल्ली का जो मुख है वह अपने बालकों के लिए, उसके बच्चों के लिए वह बहुत ही सुरक्षित स्थान है, परंतु वही बिल्ली का जो मुख है वह चूहे के लिए वो मृत्यु है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है वो प्रत्येक जीव को जो है भगवान से उसका संबंध है और प्रत्येक जीव का संबंध भगवान से होता है। वो भगवान से अलग नहीं है, परंतु वो भगवान से विमुख हो गया है। वह कृष्ण का ही अंश है, परंतु कृष्ण से विमुख हो जाने के कारण स्वयं को भगवान से अलग महसूस करता है। वो भगवान स्वयं को भगवान से स्वतंत्र महसूस करता है, परंतु कोई भी जीव भगवान से स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक जीव जो है वह कृष्ण के ऊपर निर्भर है, वह कदापि स्वतंत्र नहीं है। यदि हम कृष्ण का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें माया का, भौतिक प्रकृति का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। और यदि हम कृष्ण को श्याम सुंदर रूप में नहीं दर्शन करेंगे तो कृष्ण को हमें मृत्यु के रूप में दर्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान का जो संबंध है जीव के साथ, या तो वो कृष्ण के साथ होता है, जो श्याम सुंदर कृष्ण है उनके साथ होता है, या फिर भगवान का जो संबंध है वह बद्ध जीव को मृत्यु के रूप में होता है। तो यह जीव जो है उसे इस बात को समझना चाहिए, और जो इस प्रकार जो बुद्धिमान जीव है वह भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है। तो यहाँ परीक्षित महाराज पहले जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से भीष्मदेव से कौरवसेन सागरम और देवव्रताद्या, जो देवव्रत इत्यादि जो हैं, जो कौरव सेना के जो कमांडर इन चीफ थे, उनसे पांडवों की रक्षा की भगवान श्री कृष्ण ने। और आगे
वो बता रहे हैं कि सिर्फ उतना ही नहीं, द्रोणीम अस्त्र विप्लुस्तम इदम मदंग सनातन संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोप कुक्षिम गत आत चक्रो मातुश्चमे यह शरणम गताया। और परीक्षित महाराज यह स्मरण कर रहे हैं कि सिर्फ मेरे जो पितामह हैं थे अर्जुन और जो पांडव, सिर्फ मेरे पितामहों को भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा नहीं की, परंतु मेरी भी रक्षा की। और मेरी रक्षा किस प्रकार से की? द्रोणीम अस्त्र विप्लुस्तम इदम मदंग। तो द्रोणी जो है, जो द्रोणाचार्य का पुत्र है द्रोणी, अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया था। और किस लिए चलाया था? कि वह संतान बीजम कुरु पांडवानाम, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो कौरव सेना के जितने भी लोग थे वो सब मारे गए थे, और कोई संतान बचा नहीं था जो उस वंश को आगे बढ़ा सके। जो दुर्योधन, जो 100 कौरव थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और जो उनके जो बालक थे वो भी सब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे गए थे। और पांडवों के साइड में जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे वो मारे गए थे। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु भी जो है युद्ध स्थल में वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इस प्रकार से कुरु पांडवानाम, इनका कोई संतान नहीं था जो उस परंपरा को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ महाराज परीक्षित एकमात्र व्यक्ति थे जो अपनी माता के गर्भ में पल रहे थे, और इसलिए महाराज परीक्षित इस बात को स्मरण करते हुए सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि द्रोणीम अस्त्र विप्लुषितम मद अंग संतान बीजम कुरु पांडवानाम। तो कुरु और पांडव के जो संतान है, एकमात्र जो बीज के रूप में अपनी माता के गर्भ में जो पल रहे थे महाराज परीक्षित, तो द्रोणीम अस्त्र विप्लुषितम, विप्लुषितम का अर्थ है उनके मद अंग, तो उनके शरीर को जो ब्रह्मास्त्र है उसने जला डाला। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र जो है वो तो अचूक है, ब्रह्मा जी का अस्त्र जो है वो अचूक है, और वह आकर और महाराज परीक्षित के अंग को विप्लुषितम, वह जला दिया। और उस समय जो भगवान ने कैसे उनकी रक्षा की, तो जुगोपकुक्षुम गत आत चक्रो मातुश्चमे यह शरणम गताया। तो महाराज परीक्षित यह स्मरण कर रहे हैं कि मेरी माता उत्तरा, मेरी माता जो है मातुश्चमे यह शरणम गताया, मेरी माता ने आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया। और उत्तरा माता को यह ज्ञात था, यह पता था कि एकमात्र श्री कृष्ण है, वही उनकी रक्षा कर सकते हैं, वही उनके संतान की रक्षा कर सकते हैं। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में श्लोक आता है कि पाही पाही महायोगी। इस प्रकार से उत्तरा माता जो है ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते हुए देखकर उत्तरा माता जो है भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं, तो उस समय जो है उत्तरा माता भगवान को पुकारते हुए उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। और उस समय भगवान जो है जुगोपकुक्षुम गत आत चक्रो, भगवान जो है आत चक्रो, अपने हाथ में सुदर्शन को धारण करने वाले हैं, गत आत चक्रो। तो भगवान ने उस सुदर्शन के साथ मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की, मेरे शरीर की रक्षा की, जिसे ब्रह्मास्त्र ने जला डाला था उसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित इस बात को स्मरण कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा की थी, और अब मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय मेरे पास अब बहुत कम समय शेष है।
तो मैं अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के कथा का श्रवण करने में इसे लगाना चाहता हूँ। मैं पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना चाहता हूँ। और शरणागत में किस प्रकार से होना चाहता हूँ, तो मैं उनकी कथा का श्रवण करते हुए, उनकी कथा का रस पान करते हुए मैं उनके शरणागत होना चाहता हूँ। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि वेदों में कहा गया है अंते नारायण स्मृति। जीव को अंत में, अपने जीवन के अंत में नारायण की स्मृति होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति ना अस्ति यत्र संशयः। तो जीवन के अंत काल में जीव को कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है, क्योंकि जब अपने जीवन के अंत समय में कृष्ण का स्मरण करेगा तभी वह जीव जो है वह अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति ना अस्ति यत्र संशयः, वह भगवान के धाम को प्रवेश करेगा, जो कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो इसलिए जीव को चाहिए कि वह कृष्ण का स्मरण करे। और हम अंते नारायण स्मृति कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन के अंत समय में भगवान का स्मरण कर सकते हैं? तो भगवान का स्मरण को हम अभ्यास करेंगे। अभी से हम भगवान श्री कृष्ण के कथा का श्रवण पान करेंगे, उनके स्मरण करने का अभ्यास करेंगे, तभी यह संभव हो सकेगा कि हम जीवन के अंत काल में हम भगवान का स्मरण कर सकेंगे। और जब हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे अपने जीवन में, अपने जीवन के अंत समय में, तो वह हमारे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि होगी। परंतु यह हमें ज्ञात नहीं है कि हमारे जीवन का अंत समय कब आने वाला है। इसलिए हमें प्रत्येक समय में, प्रत्येक दशा में, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और उनके शरणागत होने का अभ्यास करना चाहिए। जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे, तभी हम अपने जीवन के अंत समय में जो है, अपने जीवन के अंत समय में हम कृष्ण का स्मरण कर सकेंगे। और यहां परीक्षित महाराज आगे बता रहे हैं कि वीर्यानि तस्याखिल देह भाजम अंतर बहिर्पुरुष काल रूपे। तो यहां परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि वीर्यानि तस्याखिल देह भाजम। तो मुझे भगवान श्री कृष्ण को जो जिन्हें कहा गया है अखिल देह भाजम, अखिल देह भाजम का अर्थ है कि जो देह का अर्थ है शरीर, तो अखिल देह भाजम, जो लोग हैं इस संसार में, इस जगत में जो लोग हैं, जिन्होंने, जो जीव है जिसने देह को प्राप्त किया है, उसके लिए जो उसका जो जीवन का जो गोल है, उस जीवन का जो लक्ष्य है वो कृष्ण है। देहधारी जीवों के जीवन का लक्ष्य कृष्ण है। इसलिए कृष्ण को अखिल देह भाजम कहा गया है, जो कि देहधारी जीवों के जीवन के लक्ष्य है। तो यहाँ भगवान जो है वह देहधारी जीवों के जीवन को हित करने वाले हैं, उनके जीवन के लिए हितकारी हैं, उनके जीवन को सर्वोच्च सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसलिए भगवान को यहाँ पर अखिल देह भाजम कहा गया है। तो यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि वीर्यानि तस्या अखिल देह भाजम, मुझे भगवान श्री कृष्ण के, जो कि देहधारी जीवों के जीवन के लक्ष्य हैं, उनके वीर्यानि तस्या अखिल देह भाजम, उनके वीर्य गाथा को, उनकी गाथा को, उनकी कथा को आप मुझे सुनाइए। अंतर बहिर पुरुषः काल रूपे, और जो भगवान जो हैं वह काल रूप में वह प्रकट होते हैं। तो कृष्ण जो है वह काल रूप में प्रकट होते हैं। तो जो भगवान के भक्त नहीं है, वो, उनके जीवन में भगवान जो है वो काल के रूप में प्रकट होते हैं। और यदि कोई यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कंस थे और दूसरे राक्षस थे, तो उनके जीवन में भगवान जो है काल रूप में प्रकट हुए
और जब भगवान काल रूप में प्रकट हुए तो उनका हित हुआ। तो यदि भगवान काल रूप में प्रकट हो रहे हैं और वो भगवान का जो भी कि वो भक्त नहीं है परंतु उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया है तो भगवान उनका हित करने वाले हैं। तो भगवान वैसे भी जीवों के लिए हितकारी हैं जो कि भगवान के भक्त नहीं है परंतु किसी न किसी प्रकार से उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया है, और जब वो कृष्ण काल रूप में प्रकट होते हैं तो उनके जीवन को भी हित प्रदान करते हैं, और वो भगवान के स्पर्श से, भगवान के हाथ से वध होने के कारण वह सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो जो कंस इत्यादि जो राक्षस थे, बकासुर, अघासुर, अरिष्टासुर, ये सारे जो राक्षस थे वो जब भगवान के द्वारा, भगवान के हाथों वो उनका वध हुआ तो वह काल रूप से कृष्ण से संपर्क में आए और इस प्रकार से उनका जीवन का उद्धार हुआ। तो इस प्रकार काल रूप में भगवान जो है वो उन जीवों का भी उद्धार करते हैं जो किसी न किसी प्रकार से स्मरण करते हैं। तो उनका भी उद्धार हुआ जब वो भगवान के भक्त नहीं थे, सिर्फ एकमात्र स्मरण के द्वारा उन्होंने स्मरण किया, द्वेषपूर्ण स्मरण ही किया, परंतु स्मरण के कारण उनका जीवन का जो है उनका उद्धार हुआ। तो भक्त यदि प्रेम पूर्वक कृष्ण का स्मरण करेगा तो किस प्रकार से जीव जो है कितनी सुलभता से भगवान को प्राप्त कर सकता है, और इस प्रकार भगवान जो है उस जीव के हृदय में प्रेम को भर देते हैं। तो इस प्रकार से सभी जीव को चाहिए कि वो जो है भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करे, क्योंकि जब कोई जीव भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है तो उसका उद्धार होता है। और यहाँ तक कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण नहीं करता है, एकमात्र भगवान को स्मरण करता है, तभी उसका जीवन का जो जन्म मृत्यु से उसका जीवन जो है उसका उद्धार हो जाता है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि किस प्रकार से यह कृष्ण भावनामृत जो है यह इतना अच्छा है। यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि apart from Lord Krishna's personal contact with Pandavas, Krishna is the super soul of all living entities and he gives everyone liberation even if one is not pure devotee. Kansa, for example, was not at all a devotee, yet Krishna after killing him gave him salvation. Krishna consciousness is beneficial to everybody, whether one is a pure devotee और नॉन डिवोटी। दैट इज द ग्लोरी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति भक्त हो या अभक्त हो, कृष्ण भावनामृत जो है वो सबके लिए लाभकारी है। सभी जीवों के लिए कृष्ण भावनामृत जो है लाभकारी है, और सभी जीवों का जो जीवन का लक्ष्य है वह भी कृष्ण भावना है। तो यह कृष्ण भावनामृत इतना अच्छा है कि कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से यदि उसे स्मरण होता है भगवान का तो उसके लिए हितकारी होता है, उसके लिए लाभकारी होता है। हम यहाँ अभी दादर में अभी पुस्तक वितरण मैराथन चल रहा है, तो यहाँ हम रोज संध्या के समय में भक्त लोग आते हैं और दादर में वहाँ पुस्तक वितरण का एक स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पर हम टेप चलाते हैं। तो कई बार जो है भक्त लोग श्रील प्रभुपाद जी की जो हरे कृष्ण महामंत्र उसको श्रवण करते हैं और उसको बोलकर हरे कृष्णा बोलकर वो आगे चले जाते हैं। कई बार पुस्तक नहीं लेते लेकिन हरे कृष्णा बोलते हैं। कई बार भक्तों को जो लोग हैं देखते हैं और देखकर वो भी हाथ ऊपर करके बोलते हैं हरे कृष्णा, ऐसा वो बोलते हैं हरे कृष्णा, ऐसा बोल के वे तेजी से चले जाते हैं। तो इस प्रकार उनको सुकृति मिल रही है। वो कृष्ण भक्तों को देखकर, जिनके हाथ में भगवत गीता है, उनको देखकर वो कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। तो जो भी कि यह डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन चूंकि भगवान के भक्तों का दर्शन कर रहे हैं और भगवत गीता का दर्शन कर रहे हैं, तो उनके जीवन में वो सुकृति प्राप्त हो रही है। और इस प्रकार से जो कृष्ण भावना है यह प्रत्येक जीव के लिए लाभकारी है, प्रत्येक जीव के लिए हितकारी है। कोई भी ऐसा जीव है नहीं है जो कृष्ण भावनामृत से उसका लाभ नहीं होगा।
क्योंकि जो बद्ध जीव है उसका एकमात्र लाभ कृष्ण भावना द्वारा ही संभव है। तो यदि कोई व्यक्ति भक्त हो या कोई व्यक्ति भक्त ना हो, वो केन केन प्रकारे न मनः कृष्ण निवेश, किसी न किसी प्रकार से यदि वह कृष्ण का स्मरण करता है तो वह उसके जीवन में वह आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक सुकृति को प्राप्त करता है, जो उसके जीवन में अंततः फलित होकर कृष्ण भावना का रूप ग्रहण करती है। और इस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की वाणी का, भगवान के संदेश का प्रचार जो है वो पूरे विश्व में कर रहे हैं। और विशेषकर इस दिसंबर मैराथन में भक्तगण जो है अपना समय निकालकर एफर्ट लेते हैं और जो संसार के जो बद्ध जीव हैं, जो लोग हैं जो कृष्ण भावना में नहीं हैं, उनको यह ज्ञान देते हैं। तो यह ज्ञान प्रदान करना ये साधारण कार्य नहीं है, ये भगवान का कार्य है और ये दिव्य कार्य है। और ये कार्य इतना सरल नहीं है, क्योंकि संसार में जो भगवान की माया है उसके विरुद्ध यह कार्य है। माया का जो स्पेल है, माया की जो शक्ति है, वह जीव को अज्ञान में लगा कर रखती है। जीव जो है अज्ञान में रहकर वो नाना प्रकार के कार्यों में संलग्न रहता है। हाँ, जब हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो लोग जो हैं कई बार तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। कई लोग तो आते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, और कई आते हैं तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। और हमें समझ में आता है कि लोग कितना भ्रमित हैं, कितना भ्रमित हैं लोग। उनको जो उनके जीवन के लिए जो हितकारी ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, उससे वो मीलों दूर है और अज्ञान में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और अपने आप को बहुत सुखी मानते हैं। संसार में जो लोग हैं वो नाना प्रकार के यत्न करते हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। और कोई जो है पैसा कमाता है, कोई प्रसिद्धि कमाता है, और इस प्रकार से कोई जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का अभ्यास करता है। इस प्रकार से नाना प्रकार के लोग अभ्यास में युक्त हैं, परंतु वो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। परंतु जो भक्तगण हैं वो जानते हैं कि एकमात्र जीव का, बद्ध जीव का उद्धार कृष्ण भावना द्वारा ही संभव है। इसलिए भक्तगण श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करते हैं। और जब जीव उस पुस्तक को ग्रहण करता है तो ग्रहण करने मात्र से उसके जीवन में सुकृति आ जाती है, क्योंकि उसने सहृदय उस पुस्तक को ग्रहण किया है, उस पुस्तक को लिया है। तो वह जो है यह सुकृति उसके जीवन में आध्यात्मिक बीज के रूप में प्रकट हुई है, और उसके हृदय में धीरे 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 जैसे कभी ना कभी वो भगवान के भक्तों के संग में आएगा, भगवान के कीर्तन करेगा, इस प्रकार वो भक्तिमय बीज को वह सींचेगा, और इस प्रकार उसके जीवन से में जो है भक्ति लता का विकास होगा, और एक न एक दिन वह भगवान के धाम को जाने के लिए वह क्वालिफाइड हो जाएगा, योग्य हो जाएगा भगवान के धाम जाने के लिए। उसके जीवन में धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत का विकास होगा। तो यह कार्य जो है बद्ध जीवों को बचाने का कार्य है। ये जो कृष्ण भावनामृत का कार्य है, जो भक्तगण प्रयास कर रहे हैं, जीवों को कृष्ण भावनामृत दे रहे हैं, यह कार्य बद्ध जीवों को उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से बचाने का यह कार्य है। तो यह कार्य जो है यह कोई साधारण कार्य नहीं है। यह कार्य जो है पुस्तक वितरण का जो कार्य है, यह भगवान का कार्य है, भगवान श्री कृष्ण का कार्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, जो मेरे इस ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाता है। और यहाँ भी महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि वीर्यानि तस्या अखिल देह भाजम, मुझे जो देहधारी जीवों को जिनके लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य हैं, उनके कथा को, उनके वीर्य गाथा को, उनके शौर्य गाथा को मुझे विस्तार से सुनाइए। तो भगवान की जो गाथा है, भगवान की जो कथा है, यह जीव के लिए हितकारी है, और यह एकमात्र कार्य है जो जीव को वास्तव में लाभ प्रदान कर सकता है। और जब भक्तगण प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं, दूसरों जीवों को इस ज्ञान को बांटने के लिए जब यत्न करते हैं, तो यह चुनौतियों से भरा हुआ है,
परंतु भक्तगण फिर भी प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान है कि इसके बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। तो वास्तव में कृष्ण भावनामृत के अभाव में जीव का कल्याण संभव नहीं है, और कृष्ण भावनामृत ही एक पद्धति है जिससे कि जीव अपने जीवन में अभ्यास करके भगवान के परम धाम को वो प्राप्त कर सकता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार भक्तगण गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यह दिव्य कार्य में अपने आप को संलग्न कर रहे हैं, और सभी जगहों पर हम देखते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर भक्त बड़े ही उत्साही होते हैं, और भक्त जो है अपना तन मन और धन लगाते हैं इसमें सेवा करने के लिए। जैसे यहाँ हम मुंबई में देख रहे हैं कि जो भक्तगण हैं ऑफिस से आते हैं, अपने बाइक से अपना पेट्रोल खर्च करके वो स्टॉल में आते हैं। किसी को पुस्तक देना है तो अपने बाइक लेकर जाते हैं, उनके घर में पुस्तक देकर आते हैं, और उस बात के लिए वो लक्ष्मी नहीं लेते हैं, और उनको किसी भी प्रकार से मंदिर जो है वो न प्रसाद उनको दे रहे हैं न, क्योंकि ये संभव नहीं है मंदिर को, सब भक्तों को मंदिर सेवा करना चाहता है, परंतु वो स्वयं उनमें इतना उत्साह है कि वो अपना तन मन और धन, अपना समय, अपनी शक्ति और अपने धन को भगवान की सेवा में इस प्रकार से लगा रहे हैं। और यह कार्य निश्चित रूप से भगवान को और श्रील प्रभुपाद जी को अति प्रिय है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे पुस्तकों का वितरण करो। तो यह कार्य जो है बहुत महान कार्य है, यह दिव्य कार्य है, और हम यह देखते हैं कि हम भी भगवान के शरणागत हुए, भगवान के भक्त बने। जब किसी भक्त ने हमारे ऊपर कृपा की और हमें कोई पुस्तक दिया, और श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों के माध्यम से यह ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, तो यह जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, और जैसा कि हम इस श्लोक में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित बता रहे हैं, कौरव सैन्य सागरम, जो सेना सागर था, और भीष्मदेव को, और जो इस प्रकार भीष्मदेव द्रोणाचार्य जो सेनापति हैं कौरवों के, उनको पार कर पाना जो तिमंगला के समान जो था बहुत कठिन था, परंतु पांडव जो हैं, यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मेरे जो पितामह थे उन्होंने आसानी से पार किया, उस प्रकार से पार किया वत्स पदम स्मः, जिस प्रकार से कि बछड़े के खून के निशान में जो जल होता है उसे पार कर सका। तो हमें किस प्रकार की कृपा आचार्यों ने प्रदान की है, वैष्णवों ने प्रदान की है, इस बात को हमें स्मरण करना चाहिए। यह जो संसार है, यह जन्म मृत्यु का संसार है, भव सागर है, और इसे पार कर पाना अत्यंत दुर्लभ है, और आचार्यों ने हमें इस प्रकार की पद्धति प्रदान की है जिससे हम सरलता से इस संसार के सागर को हम पार कर सकते हैं। तो जो इतना कठिन है, जो इतना दुर्लभ है, हमें आचार्यों ने हमें उस मार्ग को प्रदान किया कि आप इस नौका को, कृष्ण भावनामृत के नौका को ग्रहण कीजिए, उसका आश्रय ग्रहण कीजिए, और इस संसार के सागर को आप पार कीजिए। तो हम कितने कृतज्ञ हैं, हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए आचार्यों के प्रति, गुरु के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें उन्होंने ये साधन दिया जन्म मृत्यु को चक्र को पार करने के लिए। तो ये कृतज्ञता जो है, हम किस प्रकार से अपने गुरु और पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति और भगवान के प्रति इस कृतज्ञता को प्रकट कर सकते हैं। तो इस कृतज्ञता को हम प्रकट कर सकते हैं उनकी इच्छा को पूरी करके। उन्होंने हमें मार्ग दिया, हमारी रक्षा की जन्म मृत्यु के चक्र से, और हम इस ज्ञान को दूसरे जीवों को तक पहुंचाकर इस कृतज्ञता को हम व्यक्त कर सकते हैं। हम उनके ऋण को कभी चुका नहीं सकते हैं, परंतु हम उनके ऋणी हैं, हम कृतज्ञ हैं, इसलिए उनके इस ज्ञान को, उनके इस संदेश को, गुरु और कृष्ण के इस संदेश को हम दूसरे बद्ध जीवों तक पहुंचाकर हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं। और जो ये पुस्तक वितरण मैराथन है, यह बहुत ही सुलभ माध्यम है जिसके द्वारा हम इस ज्ञान को बद्ध जीवों को तक हम पहुंचा सकते हैं। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे जिस प्रकार से पुस्तक वितरण हो रहा है, श्रील प्रभुपाद जो हैं
उनकी ख्याति इस संसार में बढ़ रही है। कई बार जो लोग हैं, कल हम यहाँ पुस्तक वितरण कर रहे थे तो एक माता जी आई, एक ज़्यादा उम्र नहीं था, मेरे ख्याल से कुछ 25-26 वर्ष की होंगी, और वो माता जी को जो था वो उन्होंने पूछा कि आपके पास ये जो पुस्तक है क्या शिला प्रभुपाद जी के प्रभुपाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो मैंने कहा हाँ ये शिला प्रभुपाद जी की पुस्तक है। तो उन्होंने तुरंत बोला ठीक है मुझे भगवत गीता दीजिए, इंग्लिश में दीजिए। और वो इंग्लिश भगवत गीता ली, और मैंने जब उनको बताना शुरू किया तो बोले कि हाँ मुझे ये पता है, मैंने कभी देखा है शिला प्रभुपाद जी की पुस्तक को, और मैं चाहती थी इसको खरीदना, तो यहाँ मुझे मिल गया तो मैं उसको लेकर जा रही हूँ। तो हम इतनी प्रसन्नता होती है जब हम देखते हैं कि लोग जो है शिला प्रभुपाद जी के बारे में जान रहे हैं, और शिला प्रभुपाद जी की ग्रंथों के बारे में लोग जान रहे हैं। ये भक्त को बहुत प्रसन्नता होती है। इससे और अच्छा जीव को, भक्त को प्रसन्नता देने वाला और कोई विषय नहीं है कि जब हम देखते हैं कि लोग शिला प्रभुपाद जी के बारे में जा रहे हैं, लोग शिला प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए संदेश के बारे में धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा था कि हम पुस्तकों को वितरण करके इस संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का तिरोभाव दिवस है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिला प्रभुपाद जी को जब मिले थे 1922 में राधा कुंड पर, तब उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि पुस्तक वितरण हो। और उन्होंने ये कहा था शिला प्रभुपाद जी को कि मेरी ये इच्छा है कि मंदिर के एक एक मार्बल जो है, एक एक जो संगमरमर है, उसको मैं बेचकर और मैं पुस्तक छापूं और पुस्तक का वितरण करूं। और उन्होंने कहा था कि पुस्तक वितरण जो है यह बृहत मृदंग है। जब हम संकीर्तन करते हैं, जब हम रास्ते पर संकीर्तन करते हैं, तो संकीर्तन की ध्वनि जो है वो बद्ध जीवों के कानों तक पहुंचती है, संकीर्तन की मधुर ध्वनि। और यह पुस्तक वितरण जो है यह बृहत मृदंग है। इसकी ध्वनि जो है वो प्रत्येक जीव के हृदय में पहुंचती है जो इसको ग्रहण करता है। तो पुस्तक वितरण बृहत मृदंग है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिला प्रभुपाद जी को ये कहा था कि इफ एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, जब भी आपके पास लक्ष्मी आए, पैसा आए, तो आप पुस्तक को प्रिंट कीजिए। और शिला प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इस संदेश को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और जब शिला प्रभुपाद जी के पास लक्ष्मी नहीं था, तब भी शिला प्रभुपाद जी पुस्तकों को लिखते थे और प्रिंट करते थे। हम शिला प्रभुपाद जी की जीवनी में पाते हैं कि किस प्रकार शिला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहते थे और वहाँ पर भागवतम को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को वो लिखते थे, और वहाँ से वो दिल्ली जाते थे और वहाँ पर पुस्तकों को वो प्रिंट करने का प्रयास करते थे। जबकि शिला प्रभुपाद जी के पास साधन नहीं थे, उनके पास लक्ष्मी नहीं थी। लेकिन शिला प्रभुपाद जानते हैं कि यह जो कार्य है वह कितना दिव्य है, और इस एकमात्र कार्य से जीव का कल्याण संभव है। इसलिए अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए और जीव का कल्याण करने के लिए शिला प्रभुपाद जी ने अथक प्रयास किया। और जब पूरा विश्व रात्रि में विश्राम कर रहा होता है, तब शिला प्रभुपाद जी उस समय जाकर अपने भक्ति वेदांत परपट को, भक्ति वेदांत तात्पर्य को शिला प्रभुपाद इन पुस्तकों में लिख रहे थे। तो यह जो है शिला प्रभुपाद जी को और पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा अवसर है सभी भक्तों को। इसलिए सभी भक्तों को इसमें जो है उत्साहपूर्वक इसमें सहभागी होना चाहिए, और इस कार्य को हम कर कर पूर्ववर्ती आचार्यों को हम प्रसन्न कर सकेंगे। और यह जो कार्य है, यह कार्य हमारी कृष्ण भावनामृत के लिए भी बहुत ही उत्तम है, क्योंकि यहाँ हमारे अंदर हम चूंकि बद्ध जीव हैं, जो भी कि हम साधक भक्त हैं, हम बद्ध जीव हैं, और हमारे अंदर मिथ्या अहंकार जो है उबलता रहता है भक्त के हृदय में भी, साधक भक्त के हृदय में भी, क्योंकि माया जो है निरंतर उसको माया का जो स्पेल है उसको निरंतर परेशान करता रहता है। लेकिन जब हम पुस्तक वितरण करने के लिए बाहर जाते हैं तो हम याचना करते हैं लोगों से, और जब हम याचना करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम जो है हमें कोई मिथ्या अहंकार नहीं है। तो हम अपने मिथ्या अहंकार से मुक्त होने के लिए भी
यह बहुत ही हमें नम्र बनाने के लिए जो है यह बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा उत्तम यह कार्य है। तो सभी भक्तों जो हैं वह अपने अपने तरीके से इसमें सहभागी हों पुस्तक वितरण मैराथन में, और इस कार्य को कर कर हम बद्ध जीवों तक इस संदेश को पहुंचा सकते हैं, जिससे कि बद्ध जीवों के जीवन का कल्याण होगा, उनका हित होगा। तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।